हाँ जी बेटा, so in the previous lecture we did comprehension check 1 of chapter 6 expert detectives, in which we read that Maya and Nishad, Nishad's nickname is also Seven, so they are inquiring about some Mr. Nath whom they suspect to be a criminal, and they gather information about Mr. Nath. Now, what information do they gather and how do they proceed in their inquiry is in comprehension check 2. So, है ना, आप ऐसे कीजिए कि आप सिग्नेचर यहाँ पे Hanji. So, the information she has gathered. Second comprehension check we are going to start. I wrote in large block letters. Block letters means capital letters. What did she write? Catching a crook. Expert detectives Nishad and Maya Pandit. कौन है expert detectives? Nishad and Maya Pandit, both brother and sister. बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड. अब उनको किसने अपॉइंट किया है, मतलब ऑफिशियली हु हैज असाइंड देम दिस वर्क टू डिटेक्ट सम पर्सन बाय होल वर्ल्ड. वो कह रहे हैं कि उनको पूरी दुनिया ने ही अपॉइंट किया है फॉर इंक्वायरी ऑफ मिस्टर नाथ. देन आई बिगेन राइटिंग. I told you already, is referring to Maya. Maya started writing. About half an hour later, I turned towards Seven, who was lying on his tummy, chin cupped in his palm, reading comics. Want to hear what I have written? I asked. So, when she wrote for half an hour, all the information what she had, she turned her face towards Nishad, who was lying there on the bed and reading a comic book. And then she asked, want to hear what I have written? कि क्या तुम सुनना चाहते हो मैंने क्या लिखा है. He looked up questioningly. Questioningly means as if inquiring something. Ki what Maya was talking about, because he didn't know what she was doing. And when she asked कि क्या तुम सुनना चाहते हो मैंने क्या लिखा है, he had a question in his mind कि ये क्या कह रही है. So उसने एक बहुत questioning look के साथ, inquiry वाली look के साथ माया की तरफ देखा. I have listed all the facts we know about Mr. Nath which might help us to trap him. I said. तो मैंने उसे कहा कि मैंने जितने भी सारे फैक्ट मिस्टर नाथ के बारे में मेरे पास थे, मैंने उन्हें एक पीस ऑफ पेपर पे लिख लिया है. एंड ये जो फैक्ट है हमें दैट कैन हेल्प अस टू कैच मिस्टर नाथ. Want to hear? क्या तुम सुनना चाहते हो? Seven nodded. Seven ने अपना सिर हाँ में हिलाया. फैक्ट नंबर 1. फर्स्ट फैक्ट क्या है? आई रेड हिज नेम इज मिस्टर नाथ, कि उनका नाम क्या है? मिस्टर नाथ. वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम. हमें उसका फर्स्ट नेम डिस्कवर करना चाहिए, पता लगाना चाहिए, बिकॉज वी नो हिम जस्ट बाय हिज सर नेम. डू यू थिंक दैट्स हिज रियल नेम? क्या तुम्हें लगता है कि ये उनका रियल नेम है? माया, निशद ने माया से क्वेश्चन पूछा कि क्या तुम्हें लगता है कि ये उनका रियल नेम है? प्रोबेबली नॉट, आई सेड. माया ने कहा नहीं, शायद नहीं. मोस्ट क्रोक्स हैव एन एलियस, मीन्स अ फेक नेम, एन ऑल्टरनेटिव नेम. बहुत सारे क्रोक्स का जो विकेट पर्सन होते हैं उनका एक फेक नेम होता है, एक ऑल्टरनेटिव नेम होता है जो वो यूज करते हैं. आई एडेड अ बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ. Question mark, why did she add? Because she wanted to inquire his first name. Fact number 2. I read on. The tenants at Shankar House say he is mad, strange, and unfriendly. Tenants means person who lives on rent at someone's place. किसी के घर पे जो रेंट पे रहते हैं उनको हम टेनेंट्स कहते हैं. तो वो शंकर के घर में रेंट पे रहता है. एंड द टेनेंट्स एट शंकर्स हाउस, जो शंकर के घर में टेनेंट्स रहते हैं, वो कहते हैं मिस्टर नाथ एक मैड, स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली पर्सन है. मतलब उसका बिहेवियर इज नॉट नॉर्मल. ही डज नॉट बिहेव नॉर्मली विद द अदर पीपल इन द सोसाइटी. Number 3, he doesn't talk to anyone and is mannerless. Matlab, he's not very talkative, he does not become friendly, mix up with the people, and he does not have good manners. Good manners means he does not behave properly as he is expected to behave. But he did talk to us, Maya. And Mama says he is very polite. Nishad interrupted.
बट निशद ने माया को इंटरप्ट किया इन बिटवीन हर कॉन्वर्सेशन एंड सेड कि उसने हमारे साथ बात की थी माया, एंड मामा सेज ही इज वेरी पोलाइट, और मामा बताती हैं कि मिस्टर नाथ इज वेरी पोलाइट, ही ओनली टॉक्ड टू अस बिकॉज ही हैड टू। आई सेड, मैंने कहा कि उसने हमारे साथ इसलिए बात की क्योंकि उसे बात करनी पड़ी। What was the reason that he had to talk to the children? Because he was patient of their mother. तो माया ने उस चीज को ऐसे इंटरप्रेट किया क्योंकि उसको हमारे साथ बात करनी पड़ी, इसलिए उसने हमारे साथ बात की। एंड सिंस ही वॉज अंडर ममाज मेडिकल ट्रीटमेंट, ही हैड टू बी पोलाइट, और क्योंकि वो ममा से मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहा है, इसलिए उसे हमारे साथ पोलाइट भी होना ही था। फैक्ट नंबर 4, he does not receive any letters. 7 nodded. फोर्थ फैक्ट क्या था कि उसके पास कोई लेटर्स नहीं आते, मींस ही डज नॉट इवन कॉरेस्पॉन्ड विद हिज रिलेटिव्स और एनी अदर पर्सन। नंबर 5, he has been living in room 10 of Shankar house for more than a year. I continued. And for how long has he been living in Shankar's house? It's been 10 years. Number 6, he does not work and sits in his room all day. तो सिक्स फैक्ट क्या था कि वो कोई काम भी नहीं करता एंड अपने रूम में ही बैठा रहता है फॉर होल डे। Number 7, the kids in Shankar house and even some of the grown-ups are scared of him. सेवेंथ फैक्ट क्या है कि उससे बच्चे और कुछ बड़े भी स्केर्ड हैं, डरे, स्केर्ड मींस डरे हुए हैं। Number 8, he has no visitors except for a spectacled fair fat man who visits him on Sundays for lunch. एट्थ फैक्ट क्या था, एट्थ इंफॉर्मेशन क्या थी उनके पास कि उसके पास कोई विजिटर्स नहीं आते सिवाय एक उस मैन के जो स्पेक्टिकल्स वेयर करता है, फेयर है, फैट है और मिस्टर नाथ को एवरी संडे विजिट करता है। Number 9, food and tea are taken to his room by Ramesh from the restaurant downstairs. He does not care what he eats, pays his bill immediately, and tips well. That ends my list. Have I forgotten anything? 7. So, ninth fact उसने क्या बताया कि रमेश जो रेस्टोरेंट है डाउनस्टेयर्स वहाँ से मिस्टर नाथ के लिए फूड एंड टी लेके जाता है, एंड ही डज नॉट केयर व्हाट ही ईट्स, और उसे इस चीज़ की परवाह नहीं है कि वो क्या खाता है, मीन्स ही इज़ नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट हिज फूड हैबिट्स। पेज हिज बिल इमीडिएटली एंड टिप्स वेल, वो अपना बिल भी साथ के साथ पे कर देता है और रमेश को अच्छी टिप भी देता है। दैट एंड्स माई लिस्ट। माई हेयर इज माया। तो ये लास्ट वाले फैक्ट के साथ मेरी लिस्ट यहीं पे खत्म होती है। हैव आई फॉरगॉटन एनीथिंग? 7, क्या मैं कुछ भूल रही हूँ? 7, नाउ शी इज कंफर्मिंग वेदर शी हैज लिस्टेड all the information what she gathered. Nishad had obviously not been paying too much attention to my list of facts. Nishad clearly, obviously means clearly. Nishad clearly जो मेरी list of facts थी उसको ध्यान नहीं दे रहा था. All he could say was, poor man Maya, he must be so lonely if he does not have any friends. तो वो कहता है कि माया वो एक पुअर मैन है जो बहुत अकेला हो सकता है एंड उसके कोई फ्रेंड्स नहीं है। हाँ जी बेटा। तो क्लियरली निशद जो था वो नहीं सुन रहा था, माया को अटेंशन पे नहीं कर रहा था। ऑल ही कुड से वाज पुअर मैन माया, ही मस्ट बी सो लोनली इफ ही डज नॉट हैव एनी फ्रेंड्स। कि वो सिर्फ यही कह सकता था कि वो एक पुअर मैन है जो काफ़ी लोनली है और उसके फ्रेंड्स नहीं है। हाउ कैन अ क्रुक हैव फ्रेंड्स इडियट, आई ऑलमोस्ट शाउटेड। और मैंने ऑलमोस्ट चिल्ला के उसको बोला कि एक क्रुक के, एक विकेड मैन के फ्रेंड्स कैसे हो सकते हैं। एटलीस्ट ही हैज़ वन फ्रेंड, द वन हु मीट्स हिम ऑन संडेज, सेड निशद। निशद ने कहा कि एटलीस्ट उसका एक फ्रेंड तो है जो उसको एवरी संडे मिलता है। अ ब्रिलियंट थॉट अकर्ड टू मी जस्ट देन, और तभी मेरे माइंड में एक बहुत अच्छा थॉट आया
That man must be Mr. Nath's accomplice in crime, means helper. सो मेरे माइंड में ये आया कि हो सकता है कि वो मैन जो संडे को मिस्टर नाथ को विजिट करता है वो उनका हेल्पर हो क्राइम कमिट करने में। जब वो क्राइम कमिट करते थे तो वो उनका हेल्पर हो सकता है। आई सेड मे बी ही कीप्स ऑल द लूट एंड ही कम्स नाउ एंड देन टू गिव पार्ट ऑफ इट टू हिज पार्टनर। और मैंने कहा कि शायद उसने अपने पास सारा लूट मीन्स मनी विच इज रॉब्ड, जो पैसा लूट का है उसने सारा अपने पास रखा हुआ है। एंड कम्स नाउ एंड देन मीन्स फ्रॉम टाइम टू टाइम टू गिव द पार्ट ऑफ इट टू हिज पार्टनर। जो उन्होंने लूट है उनकी, उसको वो मैन संभाल के रखता है और टाइम टू टाइम मिस्टर नाथ को उसमें से शेयर देने आता है। मिस्टर नाथ इज पार्टनर ऑफ दैट विजिटर, तो उनको वो पैसे देने आता है। मिस्टर नाथ टू हिज पार्टनर मिस्टर नाथ फॉर एक्सपेंसेस, मतलब मिस्टर नाथ के खर्चे के लिए उनको वो पैसे देने आता है। दैट्स इट, आई एम श्योर आई एम राइट। बस यही ठीक है, मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इफ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम अ क्रिमिनल, आई डोंट थिंक आई वांट टू डिस्कस एनीथिंग विद यू। अगर तुम इंसिस्ट मतलब करना मतलब ले स्ट्रेस ऑन समथिंग, अगर तुम इसी बात के ऊपर स्ट्रेस देती रहोगी कि मिस्टर नाथ एक क्रिमिनल है, आई डोंट थिंक आई वांट टू डिस्कस एनीथिंग विद यू। मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ इसके बारे में और भी कुछ डिस्कस करना चाहूंगा। निशद ने बहुत ही गुस्से से माया को रिप्लाई किया ये। He cannot be such a bad man if he gives रमेश such generous tips. वो इतना बुरा आदमी नहीं हो सकता अगर वो रमेश को इतनी अच्छी टिप देता है। जेनरस मीन्स अदरवाइज इट इज काइंड, बट यहाँ पे हम टिप के लिए गुड अमाउंट ऑफ मनी कह सकते हैं। Ramesh probably knows something about his past, so Mr. Nath must be bribing him to keep quiet, I said. अब इसके ऊपर भी माया had a doubt, और माया ने क्या आंसर किया निशित को, मुझे लगता है कि रमेश शायद मिस्टर नाथ के पास्ट के बारे में कुछ जानता है, इसीलिए मिस्टर नाथ मस्ट बी ब्राइबिंग हिम। ब्राइब देना मतलब रिश्वत देना, तो वो उसे ब्राइब कर रहे हैं ताकि वो चुप रहे। मीन्स ही इज पेइंग good tip to Ramesh so that he can make him quiet. Nishad glared at me. Nishad glared means stared at me. मुझे घूर के देखा. With his arms tightly crossed across his chest. उसने अपनी arms cross कर ली. This is the gesture where we want to show other person that we are not interested to talk to you. We are not open to your information what you are giving us. So I was beginning to get fed up with him. Fed up means tired of something. तो I मतलब माया, I was beginning to get fed up with him. Maya said that she was, when Nishad behaved in such a way, she was getting fed up of his Nishad's behavior of arguing in favor of Mr. Nath. How can we make any progress with our investigation if you take that attitude? Attitude means view. 7, I asked, मैंने पूछा, if you have such kind of views for Mr. Nath, if you have such kind of behavior for Mr. Nath, how come we are going to progress with our investigation? हम कैसे investigate करेंगे फिर? I'll cooperate only if you give up this idea about him being an escaped crook, said 7. अब 7 अपनी कंडीशन ले करता है माया के सामने कि अगर तुम मिस्टर नाथ को एक एस्केप्ड क्रूक, मीन्स एस्केप्ड मतलब एस्केप का मतलब होता है रन अवे, तो एस्केप्ड एडजेक्टिव बन गया, जो भागा हुआ हो। एक भागे हुए क्रूक को, विकेट मैन को हम एस्केप्ड क्रूक कहते हैं। तो वो कहता है कि अगर तुम मिस्टर नाथ को ये टैग देना बंद करोगी तब मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूंगा। यू रियली मेक मी एंग्री, तुम मुझे एक्चुअली में गुस्सा दिलाते हो। I almost hit him. I make you angry, you stupid off, I shouted. तो मैंने ऑलमोस्ट हिट कर दिया था निशद को और मैंने उसको बोला मैं तुम्हें गुस्सा दिलाती हूँ। यू स्टूपिड ऑफ मीन्स अनइंटेलिजेंट person. You make me mad. What is the point of all these inquiries if he is not a crook? तो माया कहती है कि यू मेक मी क्रेजी अबाउट द थिंग्स। तो अगर वो क्रुक नहीं है तो व्हाट इज द फन ऑफ ऑल दीज इंक्वायरीज जो हम कर रहे हैं अगेंस्ट मिस्टर नाथ? इफ यू थिंक ही इज नो बडी, व्हाट्स द आइडिया ऑफ बॉदरिंग अबाउट हिम? प्लीज टेल मी। अगर तुम्हें लगता है कि वो कोई नहीं है, मीन्स ही इज नॉट अ क्रिमिनल,
तो फिर हम क्यों इतना बॉदर कर रहे हैं उसके बारे में, हम क्यों इतने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में? निषद लुक्ड थॉटफुल। अब निषद थोड़ा सोच में पड़ गया। I would like to find out why he is so thin and why he is so lonely. अब निश्चित कहता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि why Mr. Nath is so thin and why is he so lonely. Means कि उसकी appearance ऐसी क्यों है, sick appearance क्यों है उसकी, और उसके कोई friends क्यों नहीं है. I want to know why he doesn't have any friends and lives alone. What is the reason that he lives all alone? Try to understand 7. I told him. मैंने उसे बोला समझने की कोशिश करो. If he has lived in Shankar's house for a year and has not made a single friend, there is something wrong. कि अगर उसे शंकर के घर में रहते हुए पूरा 1 साल हो गया है और उसने कोई भी एक फ्रेंड भी नहीं बनाया, तो इसका मतलब कुछ तो गलत है. He is obviously scared that someone will recognize him and give him up to the cops. वो क्लियरली बहुत ही डरा हुआ है ये सोच के कि इफ ही मेक्स सॉरी, if he makes friends with the someone, then that person will recognize him as a criminal and वो उसे hand over कर देंगे किसको? Cops को. Maybe no one has tried to make friends with him. Nishad protested. Protested means opposed. यहाँ पे निशद ने माया के इस व्यू को अपोज करते हुए कहा कि शायद किसी ने ट्राई ही नहीं किया कि वो मिस्टर नाथ के साथ फ्रेंड्स बने. Why should anyone bother? You have seen what a nasty bear he is, I said. माया ने कहा why should anyone bother? कोई क्यों बॉदर करेगा उसे फ्रेंड्स बनाने के लिए? You have seen what a nasty bear. Nasty means unpleasant person. नास्टी बियर यहाँ पे जो फ्रेज यूज किया है वो अनप्लेजेंट के लिए किया है. तुम्हें पता है कि वो कितना अनप्लेजेंट सा पर्सन है. आई डोंट केयर, सेड निशद स्टबनली. स्टबनली मीन्स जिद्दी तरीके से. ऑब्स्टिनेट होता है स्टबन का सिनोनिम इज ऑब्स्टिनेट. तो उसने कहा कि मुझे नहीं परवाह इन सब चीज़ों की. आई लाइक हिम एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड बी हिज फ्रेंड. मैं उसे पसंद करता हूँ एंड आई विल ट्राई टू बी हिज फ्रेंड. Friends with a crook? Haha, you're crazy. 7. क्या तुम एक क्रूक के साथ फ्रेंड बनना चाहते हो? तुम पागल तो नहीं हो गए? The cops will take you to jail with him. Cops तुम्हें भी उसके साथ ही जेल ले जाएंगे. Do you want that to happen, you idiot? क्या तुम ये होने देना चाहते हो, idiot? Nishad merely glared at me and quietly walked out of the room. My theories seemed to have made no impression on him at all. So Maya feels that Nishad ने बहुत ही कम उसकी तरफ देखा. Means he did not make any eye contact with Maya when she said this, that the cops would take you to jail with Mr. Nath. He did not make any eye contact with Maya and he quietly walked out of the room. And what Maya thinks कि शायद उसकी जो theories हैं, whatever the inquiries she had, whatever the information she had, उस चीज का निशद के ऊपर कोई भी impression means influence नहीं पड़ रहा था. Means Maya argued a lot with Nishad about Mr. Nath being a criminal, but every time Nishad had a different opinion. Maya tried to convince Nishad that Mr. Nath is a criminal, but till the end of the chapter, Nishad was not at all convinced that Mr. Nath is a crook. So I hope you understood the chapter.